स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to the discussion of the book New Horizons of Public Administration by Mohit Bhattacharya ji, Chapter 6 and Part 2. So over here the discussion goes by systems approach. So what is systems? Earlier in classical school of thought, the organization were not considered to be attached kind of organization. It means the organizations were not considered to be organization which the parts can be attached and they are in interaction with the environment. But that was challenged and a new kind of understanding about organization, people working in group was brought in. What was that organizational aspect? System approach. The term general systems theory owes its origin to famous biologist Ludwig von. So from biology, life sciences came an understanding in the understanding of organization and big bureaucracy that certain things are working like living bodies. They are in contact with the surrounding and on regular basis. Traditional knowledge, according to Bartleby, has grown around specific sub areas and subject matter. So classical school methods, tools, those were concentrated on some specific aspect, some small constituent. To quote, if we survey the various fields of modern science, we notice a dramatic and amazing evolution. Similar conceptions, principles have arisen in quite different realms. Although this parallelism of idea is a result of independent developments and the workers in the individual fields are hardly aware of the common trend. Thus, the dynamic conception of reality becomes apparent in all fields of science. The context is that people are not aware of interconnectivity in many constituents, and these interconnectivity are present in life, in organizations, in groups, in bureaucracy. So general system theory is an attempt to join up different approaches of understanding like we have in science to provide a macroscopic view of different types of systems like bureaucratic system, like manufacturing system. The system approach has evolved slowly in social sciences, also came from the biological understanding. For an example, Talcott Parson applies the open system approach to study of social structures like religion, like organization, like how society interacts. So in the field of individual personality, another scholar, Kurt Lewin, is well known for his application of tenets of Gestalt psychology, which means pattern psychology. Robert Chin observed psychologists and sociologists, anthropologists, everybody is talking about something common. Using system model, in doing so they find intimations of exhilarating unity of science. जहाँ पर systems क्या हैं? Biological, physical science की तरह exactly same है. Or the system model is regarded by some system theories as universally applicable to physical and social events and to human relationship in small or larger units. तो ये quote है. अब ये क्या कह रहा है कि common theme running है और वहाँ पर कॉमन थीम यहाँ पर हर स्कॉलर की यही है, जैसे बायोलॉजिकल रियल्म में चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, वैसे ही ब्यूरोक्रेसी में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें कनेक्टेड हैं. सो व्हाट इज अ सिस्टम? सो सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स जो रिलेटेड है, जैसे इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट. इसका मतलब है कि हर चीज जुड़ी हुई है. यहां पर आप इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है और आपको एक आउटपुट मिलता है, और साथ में ये जो चीज है, ये इकाई जो है पूरी, ये एनवायरनमेंट से भी आपके इंटरेक्शन कर रही है. कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं है. अ सिस्टम इज दस अ यूनिफाइड होल. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ये जैसे आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, सब सिस्टम है, और इनकी हर किसी की एक बाउंड्री है. ये एक दूसरे को भी और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को अलग करते हैं. सो सिस्टम आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज क्लोज या ओपन. सिस्टम में भी क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है. सो जो बायोलॉजिकली जिंदा चीजें हैं
वो लगातार इंटरेक्शन कर रही हैं, जैसे आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, और जो भी आपके ट्रीज हैं लगातार, अगर बर्फ पड़ती है तो अलग टाइप से फंक्शन करते हैं, गर्मी होती है तो स्वेटिंग हो जाती है, इस तरीके से इंटरेक्शन में है। पर हमें देखने को मिलता है कि जो आपके क्लोज्ड मॉडल है, जो फिजियोलॉजिकल है, मैकेनिकल मॉडल है, वो आइसोलेटेड एस्पेक्ट में काम करते हैं। सो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरीज थी क्लासिकल टाइम्स की, वहां पर उनका एक फेलियर का कारण या एक कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग ना होने का कारण यही था कि उन्होंने इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट को बाहर रख दिया था, उससे ड्रॉ नहीं कर रहे थे। सो क्लोज सिस्टम हैव अ जनरल टेंडेंसी टुवर्ड्स एंट्रोपी एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। जो भी समाज, जो भी सोसाइटी, जो भी देश या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में आउटवर्ल्ड वर्ल्ड से अपने को क्लोज कर लेती है, इंटरेक्शन नहीं कर रही है, उसमें आपको एंट्रोपी या डिसऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ओपन सिस्टम ऑन द अदर हैंड्स हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप थ्रू ग्रेटर इंटरनल डिफरेंशिएशन एंड मूव टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो लगातार क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अपने को उस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल रहे हैं। सो ये अनाउंस करना आपको महत्वपूर्ण है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 29 ऑफ नवंबर 1 to 4 क्लासेस होती हैं ऑन डेली बेसिस, और यहां पर आपको बहुत सारी जो ऑफरिंग्स हैं वो मैं बता देता हूं। सो ऑफरिंग्स आर 1 to 4 क्लासेस ऑन डेली बेसिस, देन वी हैव PDF handwritten notes, then from various sources, from various books, research papers, you will have another sort of PDF, that is your reading material, crux we call it. Then you have 12 tests, in which 4 are full length test, 8 are sectional test. You have answer writing practices. So जो भी हम टॉपिक क्लियर करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग होती है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस होते हैं। इसके साथ साथ IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और EPW के आर्टिकल्स भी डिस्कस करे जाते हैं। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड ऑफर टू यू. You have to remember, you have to use SC Live Code while having all these offers at a price 15,999. So you all are welcome to the batch. We'll meet you there. Moving forward. So relevance of organization theory. So system approach is particularly relevant to study of complex organization. जब complex organizations की बात हो रही है तो यहाँ पर आप पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में भारत में भी समझ सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार इंटरेक्शन कर रही है, वो बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं और बहुत सारे टाइप ऑफ समस्याओं को सॉल्व कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि कितनी सारी योजनाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू ही चलती हैं। स्वामित्व स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, आवास योजना हो गई। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत सारी डिपार्टमेंटल भी कन्वर्जेंस हो रहे हैं। According to the open system perspective, an organization survives and grows by drawing inputs from environment. So कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे ब्यूरोक्रेसी ही है, वो अपने जो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन चाह रहे हैं या लोग सिविल सोसाइटी के थ्रू समस्याओं को सुलझाना चाह रहे हैं। जैसे वेरी रिसेंटली आपके होम मिनिस्ट्री ने सिविल सोसाइटीज फ्रॉम कश्मीर वैली और लद्दाख रीजन को बुलाया है टू हैव अ डायलॉग। सो जो भी आपकी ओपन पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो इस तरह से काम कर सकती हैं। इट इज थ्रू दीज इनपुट कन्वर्जन आउटपुट प्रोसेसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन्स एंड डेवलप, जैसे ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट्स। So West Churchman draws attention to 5 basic consideration in relation to the systems approach to management, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की, देश की। The total objective of the system and the measure of system performance, कैसे हम सिस्टम कार्य कर रहा है, मैनेजमेंट में जब सिस्टम अप्रोच लगाते हैं तो उसके आउटपुट क्या निकलते आते हैं। सिस्टम एनवायरनमेंट एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट,
क्या डेमोक्रेसी में कोई ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, या फिर वो म्यांमार टाइप की जुंता गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, या फिर एक फेल्ड स्टेट जैसे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है? सिस्टम रिसोर्सेज दैट आर पुट टू यूज इन द परफॉर्मेंस। रिसोर्सेज ये आपके ह्यूमन बींग्स, HR, पर्सनल्स, फाइनेंस, सिस्टम्स, कंपोनेंट्स एंड द गोल्स एंड एक्टिविटीज, सब सिस्टम्स किसी भी बड़े सिस्टम के, जैसे भारत में ही है सो सब सिस्टम्स, इवन जो आपका रिलीजन है या फिर कास्ट है, ये भी सब सिस्टम्स के पार्ट हैं, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब सिस्टम्स के पार्ट हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, द रेगुलेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स, कैसे कार्य कर रहे हैं, जहां पब्लिक पॉलिसी बन रही है। So Philip Selznick has used the system framework in his studies of governmental and other complex organization. So यहाँ पर Selznick को कोट करें, cooperative system are constitutive of an individual interaction as a whole to a formal system of coordination. So यहाँ पर cooperative system coordination के थ्रू कार्य करते हैं. The concrete structure is therefore a result of reciprocal influences of formal and informal aspect of the organization. यहां पर जैसे ब्यूरोक्रेसी ही है, वास्तव में वो कैसे कार्य कर रही है, वहां पर इनफॉर्मल और फॉर्मल इंटरैक्शंस हो रहे हैं। मतलब एक फॉर्मल इंटरैक्शन है जहां पर एसडीएम को डीएम साहब ऑर्डर कर रहे हैं, परंतु वहां पर कुछ इनफॉर्मल इंटरैक्शंस भी हैं जहां पर ये जो ऑर्डर आए सारे एसडीएम्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये डीएम साहब का ऑर्डर सही है या नहीं है, लैंग्वेज सही थी या नहीं थी, डांट दिया तो क्यों डांट दिया, गलत डांट दिया, ऐसा चीज। So furthermore, this structure is itself a totality and adapted to the external environment. साथ में ये जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं इन पे बाहरी चीजों का भी प्रभाव पड़ ही रहा है। As Miller and Rice put it, यहाँ पर मिलर और राइस जो कि स्कॉलर्स हैं उनका कहना है, any enterprise may be seen as an open system which has characteristic of common with biological organism. जैसे इंसान लगातार बाहर धूप पड़ रही है तो छांव में जाने का मन करता है, बारिश पड़ रही है तो कहीं सूखी जगह जाने का मन करता है, बहुत ठंड पड़ रही है तो कपड़े पहनने का मन करता है। सो इसी तरह ओपन सिस्टम एग्जिस्ट एंड ओनली एग्जिस्ट जब वहां पर मटेरियल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे ब्यूरोक्रेसी रेलेवेंट तभी रह सकती है जब जनता की मांग जो हो रही है पता चल रहा है। It imports material, transform their means of conversation process, consumer of some of the product of conversation for internal maintenance, export the rest directly. So यहाँ पर कुछ चीजें इनपुट की तरह आती हैं, वहां पर बीच में प्रोसेसिंग होती है, कुछ चीजें एनर्जी यूज भी हो जाती है, रेवेन्यू फिनेंस यूज होती है, और फिर लोगों की भलाई के लिए आउटपुट निकल के आता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में भी देख सकते हैं। The system approach is now being used to study the various big organizations as well. So bureaucracy को, बड़ी कंपनीज को, देश को चलाने में, राज्य को चलाने में इनका यूज हो रहा है। Facilitating the contingency and situational view of organization. So पहले क्लासिकल मॉडल में जब हम देख रहे थे तो वन बेस्ट वे था कि ये कुछ तरीके हैं, जैसे पोस्टकॉर्प, पॉक के फॉर्मूले हैं, 14 प्रिंसिपल हैं पेयोल के, ये आप कहीं भी लगा दीजिए और चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। पर यहाँ पर सिस्टम्स अप्रोच ने ये हेल्प करी लोगों को समझाने में, स्कॉलर्स को समझाने में, जो बाद में आए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखी कि हमें कंटिंजेंसी और सिचुएशन के आधार पर भी चीजों को देखना होगा। मतलब सेम ब्यूरोक्रेसी अभी जब डिजास्टर मैनेजमेंट में कार्य कर रही है तो अलग तरीके से कर सकती है एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्टम थ्योरी, करंट व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इज दैट द स्ट्रक्चर कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे ब्यूरोक्रेसी सिचुएशन टू सिचुएशन अलग कार्य कर सकती है, जैसे सिल्कियारा में अभी टनल में ड्रिलिंग हो रही है, सो वी नो कि ब्यूरोक्रेसी 24/7 वहां काम कर रही है। ऐसा एकदम से जिसको हम कह रहे हैं मिलिट्री टाइप ऑफ रिस्पॉन्स डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं देखने को मिलेगा। सिचुएशनल थ्योरीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी प्रेजेंट अ ट्रेंड टू डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव टू अ सिचुएशन। कोई भी नई सिचुएशन आती है, कंटिंजेंसी जैसे भी आती है, उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन अपने को ढाल लेती है। यहाँ पर सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट रिक्वायर दैट वी डिसमिस अर्लियर आइडियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
बीट क्लासिकल थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। सो इससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है वेबर की, या क्लासिकल थ्योरी है जिसमें आप साइंटिफिक मैनेजमेंट वेबर पढ़ते हैं, फियोल की थ्योरी पढ़ते हैं, उनको डिस्कार्ड करना सही नहीं रहेगा। देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल दैट इज गुड फॉर एवरी सिचुएशन। हमें अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, हर जगह पर एक ही मॉडल नहीं अपनाया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि यूएस की ब्यूरोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, एंड चाइनीज Mandarin type of bureaucracy is very different as compared to the colonial and then inheritance of bureaucracy in India. Two important lines of thought that are significant in context जो देखने वाले हैं वो ये हैं, क्या है? एक तो टेक्नोलॉजी है इसमें। One of these are underlines the significance of technology जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन बता सकती है, और दूसरी है line of thought suggests the importance of environment in shaping the design। को कहीं भी टेक्नोलॉजी, जैसे अब डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सो वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बता सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की जरूरत है या बहुत सारे लेखपालों की जरूरत है क्या? जब आपने डीबीटी कर दिया तो बहुत सारे ऐसे जो आपकी स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी थी, अब उनकी तो जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि आपको लोगों को बार बार योजनाओं को बताने की, उनको पैसे देने जाने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लिक ऑफ द बटन से लोगों के बहुत सारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान स्कीम में हो रहा है। सो व्हेन दिस grouping was done, a number of interesting relations were noticed as follows. लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज्ड। इनकी स्टडीज में, यहां पर कुछ स्टडीज हुई, वहां पर देखा गया टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के प्रभाव को स्टडी किया गया। सो लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज्ड विद टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। सो जहां पर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वहां पर लेवल इंक्रीज हो गए, मतलब ऐसे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। यूनिट प्रोडक्शन हैविंग लीस्ट मोर इन मास प्रोडक्शन एंड मोस्ट इन प्रोसेस प्रोडक्शन। सो जहां पर छोटी इकाइयां काम कर रही थी वहां से कॉम्प्लेक्स इकाइयों की तरह ये लेवल्स बढ़ गए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, या हम बात करें इंडियन ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, देन आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ और वीडीओ, इस तरीके की हायरार्की कहीं भी हो सकती है। रेशियो ऑफ मैनेजर्स टू टोटल पर्सनल इंक्रीज विद टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसका मतलब है जहां पर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी थी, जहां पर जो नई नई टेक्निक ला रही थी, वहां पर मैनेजर्स की संख्या टॉप लेवल पे बढ़ गई एज कंपेयर टू टोटल पीपल वर्किंग। स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर इंक्रीज फ्रॉम यूनिट टू मास। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर मतलब यहां पर बिल्कुल जो आपके लोग मजदूर स्तर पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, यहां पर देखा गया कि यूनिट प्रोडक्शन में बढ़ गई, देन डिक्रीज फ्रॉम मास टू प्रोसेस। परंतु जहां पर हमने मास प्रोडक्शन का मतलब है जैसे बहुत सारी गाड़ियां बन रही हैं, और जब प्रोसेस का मतलब है बहुत सारी इंटर रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर घट गई। सो द मोस्ट अब इंट्रूगिंग इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो देखने को मिला वो है रिलेशनशिप ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर का क्या संबंध है? स्ट्रक्चर का मतलब है कितना ओपन है, क्लोज है, हायरार्की वाला है, क्या ब्यूरोक्रेसी की तरह बहुत ही मिलिट्री टाइप है? There was a distinct tendency for successful firms in each category to cluster about a certain span of control. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कोई भी एक व्यक्ति कितने अपने सबॉर्डिनेट्स को, जैसे ये व्यक्ति है, कितने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है, ले सकता है। क्या ये अनलिमिटेड हो सकता है? नहीं, एक लिमिट हो सकती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही 200 डीएम काम करने लगे, एसडीएम्स काम करने लगे, तो दिक्कत हो जाएगी। जनरली आपको दिखता है 5-7 तहसीलें हद से हद होती हैं एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में भी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगातार एसडीएम्स कन्वे करते हैं अपने प्रोसेसेस को। यहां पर इनका कहना है विद द लेस सक्सेसफुल फर्म्स सीमिंग टू हैव ईदर टू स्मॉल और टू लार्ज स्पैन ऑफ देयर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। सो हमें देखने को मिलता है जो अनसक्सेसफुल टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वहां पर एक तरीके से एक्सट्रीमिटी है। या तो वहां पर एक ऑफिसर के नीचे एक ही ऑफिसर था, या एक ऑफिसर के नीचे 50 ऑफिसर थे। तो कुछ इसके बीच में जो एवरेज था वो डिसाइड कर रहा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी सफल है।
So to quote Woodward, the fact that organization characteristic, technology and success were linked together in this way suggested that not only was the system of production an important variable in the determination of organization structure, but also one particular form of organization was most appropriate to each system of production. So यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के लिए किसी एक विशेष टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो सकती है। हो सकता है चाइना टाइप की ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड चीजें बेहतर हों एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि एक डेमोक्रेसी है। वहां पर इंटरैक्शन, कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, गवर्नेंस जैसी चीजें, जहां पर सिविल सोसाइटी या फिर लोग और सिविल पंचायतें या एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी कार्य करें। हाउ इंपॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी। अब ये वहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए कहीं भी ब्यूरोक्रेसी जैसे भारत में है, टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है? क्या मिलिट्री में टेक्नोलॉजी आ जाने से सब कुछ चेंज हो जाता है? क्या मैन और मशीन का जो एक रिलेशन है उस पर क्या एस्पेक्ट्स हैं जो देखे गए? टू व्हाट एक्सटेंट डज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कॉज ऑर्गेनाइजेशन टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑपरेटेड इन अ सर्टेन वे? इस टेक्नोलॉजी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टेक्नोलॉजी के लाने से कुछ चीजें बेहतर होती हैं, नहीं होती हैं, या टेक्नोलॉजी आने से सर्टेन काइंड्स ऑफ चीजें हो जाएंगी? क्या सीसीटीवी लगाने से अपराध रुक जाएगा? भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सीसीटीवी एक एलिमेंट है। लोग सीसीटीवी में आने के बाद भी मुंह पे कपड़ा लगा के अपराध करते हैं। यू हैव सीन दैट। सो दिस लीड्स टू वन थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म, कि टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी तो चोरी बंद हो जाएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको चोर को के पास कैश चुराने का मौका ही नहीं रहेगा। पर आपने देखा साइबर अपराध, यू आर सीइंग साइबर थेफ्ट दैट इज हैपनिंग। सो पीपल, normal people, there was a news that in Gurgaon a vegetable seller became one of the thief of cyber crimes and amassed lot of wealth. So there is no determinism कि टेक्नोलॉजी आएगी तो चीजें सही हो जाएंगी। So it's not however true that technology is not amenable to changes dictated by human choice. उसको बदला जा सकता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली यूज करा जा सकता है। जैसे ई गवर्नेंस की बात है। सो ई गवर्नेंस आने से क्या जो आपका सर्टेन काइंड ऑफ करप्शन था कम हो गया? नहीं, अभी भी है। यहाँ तक कि जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स पे लोग काम करते हैं या तहसीलों में भी काम करते हैं, अब क्योंकि सामान्य लोगों को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है तो वे इंटरनेट एक्सेस के लिए ही पैसे ले लेते हैं करप्शन करने के लिए। टू से दैट टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन डज नॉट प्रिक्लूड इट्स बीइंग कंसिडर्ड समथिंग दैट इट इटसेल्फ कैन चेंज एंड अल्टर्ड। सो प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण है, पर केवल टेक्नोलॉजी आने से ही सब कुछ डिसाइड नहीं हो सकता है। एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात करी गई है। इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी लिटरेचर इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन हैज बीन वाइडली डिस्कस्ड। क्वाइट अ फ्यू एसेंशियल रिसर्च, इन्फ्लुएंशियल रिसर्च बताते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दायरे में काम करती है। जहां अगर आप सेम टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को उठा के ले जाएंगे अरबिक वर्ल्ड में, इंडिया में जैसी है, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि दिस ब्यूरोक्रेसी इज इन अ वे डिजाइन टू वर्क विद कांस्टेंट इंटरपर्सनल इंटरैक्शन विद द पीपल। वहां पर अरबिक कंट्रीज में कोई भी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं है, वहां पर बहुत ही सख्त और जिसे हम कहेंगे एक मोनोक्रोमेटिक पावर है वहां सुल्तान्स में। तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। So environment for this purpose can be considered as immediate operating environment of an organization, which would refer to set of conditions outside the environment जो कि directly impact करती हैं। मतलब क्या जनता जो है वो ब्यूरोक्रेसी को लेजिटिमेट मानती है? क्या जनता को समझाया जा सकता है या लोगों का बिहेवियरल चेंज करा जा सकता है क्या? राइट? The basic design of organization seems to have been critically affected by two interrelated dimensions: environment relative stability versus instability, environment relative simplicity versus complexity. Stability, instability, complexity, simplicity. Stability, जहां पर कोई imagine a place like Ukraine, unstable environment. Relatively stability, India,
stable environment, simple processes, agrarian, complex processes, industrial, and industry 4.0, right? रिलेटिवली स्टेबल एंड सिंपल एनवायरमेंट्स में ये देखा गया है कि वो परमिट करती है इंडीड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन अप्रोक्सीमेटली द ब्यूरोक्रेटिक टाइप। स्टेबल और सिंपल एनवायरमेंट में ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा काम करती हैं। जहां पर स्टेबल है, चीजें बदल नहीं रही हैं, टेक्नोलॉजिकल रप्चर नहीं हो रहे हैं, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वहां पर ट्रेडिशनल टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक जैसे हायरार्की वहां पर बहुत है, रेड टेपिज्म है, धीरे धीरे काम हो रहा है, चलता रहता है। पर जहां पर भी बहुत ही चेंजिंग डायनेमिक्स है वहां पर ये ब्यूरोक्रेसी पूरा उसको समझ नहीं पाएगी। ऐसे एनवायरनमेंट्स में जो बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहे हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बहुत रैपिड चेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन 2015 से अब देख लीजिए जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को अकाउंट स्टॉप कर दे रही है। वहां पर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करना है। सो कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी जहां पर भी होगी लीड टू मोर फ्लूइडिटी डिजाइन इन ऑर्गेनाइजेशन, डी एम्फेसाइज स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। वहां पर आपको इंडिया में भी जो आपकी 1970-80 तक की ब्यूरोक्रेसी थी वैसी ब्यूरोक्रेसी से अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर माना जाएगा अरे यू आर जस्ट ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट, ट्विटर एक्स, तो आपसे हम क्यों बात करें। बट that X account of a particular politician may be connected with 20 million other accounts like we have in India now. So you have to understand that. Also, there is a certain evidence that an organization structure is not keeping in step with the salient feature of environment is apt to be less effective. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्लोज टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कहते हैं many a times in India में bureaucracy is criticized. Why? हम कहते हैं अरे यार कि BSNL देखो कितना डिले हो गया है, and which with Jio Fiber and Airtel X things are very simple. So we do criticize this red tapeism, we do criticize this status quoist aspect of bureaucracy. So whenever an organization is not in constant interaction as the private organizations are, there is a tendency of failure. If the environment is highly dynamic and turbulent like Silicon Valley, like war situation, hierarchical and rule bound organization डिसएडवांटेज होंगी। हाउएवर विद इन अ रिलेटिवली सिंपल और स्लोली चेंजिंग एनवायरनमेंट, हायरार्की वाली ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एडज होगा आपके और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सो जब भारत बहुत तेजी से चेंज नहीं हो रहा था, जब 1970-80 की बात करें, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी ओल्ड एम्बेसडर वाली ब्यूरोक्रेसी, कार वाली, दैट वाज वर्किंग वेल। बट post 1991 we have seen dynamism. Now the officers are not just the bureaucratic officers, they are themselves CEO of their districts. Lot of investment that comes from abroad also. District magistrate now have to play a very keen role, right? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अब केवल रेवेन्यू और लाठी वाला रोल नहीं करना है, वो सीईओ हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप की चीजें हैं उनको उसको फैसिलिटेटर बनना है। ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इस लेक्चर के बाद आप एक बार बुक पढ़िएगा। कोई भी आपको दिक्कत हो तो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट on Public Ad by Shekhar, this is Telegram channel, and Public Ad by Shekhar, this is Instagram channel. And to taking admissions also, you can inquire about anything. In this lecture, we had the discussions on the systems model and the type of organization जो complex और simple situations में काम कर सकती हैं। बहुत सारे scholars को हमने पढ़ा। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।